स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। People in the ashram, or you can say our group, worldwide group, they say that we should be speaking some lectures will be in English, because when it is in English, it is a recorded one, and these are used in the weekly global satsangs, where the lectures are in English. So when we are not there, like we are visiting Jamshedpur now, so all my talks on Thursdays have to be some recorded talks. So that is why to have them, our lectures are, some lectures are in English, so that those can be used in the global weekly satsangs. But I faced a difficulty when I went to Delhi. I was told that I should be talking in English, and I don't remember now what was the topic. But when I started talking, I found that in my front, all are sitting with whom I speak in Hindi. So automatically Hindi was coming. So the first day with some difficulty, I spoke with English and Hindi together. And from the very next day, I changed over to Hindi, because I felt that it was not very normal that I am speaking in English while all the listeners with whom I speak every day in Hindi, they are listening to me. So now also I don't know what will come out of my mouth, but let us see. So the topic is given as Bhagavad Gita in daily life. Bhagavad Gita, नित्य जीवन में क्या है? ये है नित्य दिन हम भगवद गीता क्या कर सकते हैं उसके लिए. So when I was asked about the topic, and mostly when we are choosing the topics, it is in great hurry. So when I was asked to pick up a topic, I just thought for some time and said Bhagavad Gita in daily life. I don't know what I exactly thought about at that time, what I will speak. Bhagavad Gita daily life में क्या करेंगे उसको लेके हम क्या बताएंगे, हमने सोचा नहीं था. I never thought about it. But today, when the day of the lecture came up, I was feeling
what I should be talking, what really I meant, and what I can convey. So with this topic, Bhagavad Gita in daily life, it has come to me very, very promptly when I was asked, Bhagavad Gita in daily life. I think Bhagavad Gita is a book of sadhana, is a book of life, and the whole of Bhagavad Gita can be applied in one's daily life, moment to moment. ये ऐसी किताब है, ऐसा एक ग्रंथ है भगवद गीता, जो कि हर एक क्षण हम इसको अपने जीवन में लगा सकते हैं. So, Bhagavad Gita in daily life is actually my life, I would say. So, I must have thought that it will be the most normal, natural, and very easy for me to talk about. So, this morning from today, I started thinking what I will speak and how I can convey what I have attained in Bhagavad Gita, or what I have achieved through Bhagavad Gita, what sadhana I have done, how I have looked at Bhagavad Gita, and I think that will be very useful, that should be very useful to people. This Bhagavad Gita, when I first started studying it, I stepped into this path quite young, and I came in, Baba came into my life. I started writing letters to him. Baba started replying my letters. In that, not much of philosophy was taught. Very simple upadesh. Baba लिखते थे हमें, हम जब चिट्ठी लिखते थे बाबा को, बाबा उपदेश कुछ लिख देते थे. But those were very, very basic and very useful ones, जो कि अपने हृदय तक पहुंच जाता था. जैसे बाबा ने मुझे लिखा, डरो नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर हैं. And that is what Bhagavad Gita is saying. God is everywhere, God is inside you. तो ये जो जब हम पढ़ते थे, तब हम बाबा के साथ जब हमारी चिट्ठियाँ होती थी, so at that time I started reading Bhagavad Gita. क्योंकि Bhagavad Gita we know, it's in everybody's house. We know this is our one text which is there in every house, every Indian house. So when I started reading it, I don't think I understood what it has to give anybody, especially give me. But when I started reading it, just reading and reading the simple meaning, simple translation. But as I started progressing, I understood that, oh, what is this? Can this be like this? Can it be like this? Can one's situation in life or one's life can be like this? जैसे मानिए, this, when I came to the second chapter and I started reading this section where it is the Sthita Prajna Darshana. Where is it? What has it written? It says, Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmanyevatmana tushtaha Sthita Prajnas tadochyate. So, I think many of you know this shloka. And in this shloka, what is being said? Sthita Prajnasya Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmanyevatmana tushtaha Sthita Prajnas tadochyate. So in this shloka, Krishna is saying that when somebody removes all his desires from the mind, then he becomes contented. He becomes tripta, contented. Tripta means kya? You don't have any more desire, any more thing to want anymore. So contented in his own within, atmanyevatmana tushtaha, in his own self, he becomes very, very contented. He doesn't want anything else. All his
joy, all his santushti, everything is inside. And then he is called Sthita Prajna, Sthita Prajna Stadochyate. तो ये जो वर्ड है ना, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने ही अंदर संतुष्टि हो जाती है। ये जब हमने पढ़ा हमें लगा अच्छा ये भी होता है क्या, क्यों हमने ऐसा सोचा? हमने ये इसलिए सोचा क्योंकि हमें लगा कि हम लोग जो हमारी तुष्टि है, संतुष्टि है, हमारी जो आनंद है वो हम बाहर देखते हैं। हमें कुछ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें संतुष्टि मिल जाती है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो अगर वो फुलफ़िल हो जाता है तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं अपने ही अंदर खुश हो सकते हैं, खुश रहते हैं। कौन? जिसके मन से सारा कुछ डिज़ायर चला गया है। One who has relinquished all the desires, that person becomes absolutely contented in oneself. So then I felt that what is this? Is this a state which one can attain? If so, I would like to attain it. You understand? Where from I started? I started reading the book. And in reading, when I was coming across such concepts, which is very, very new to me, and I was seeing that Arjuna is being advised by Krishna that Krishna, leave your desires, you will become contented in your mind, in your own within. कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? जब हम ये किताब पढ़ रहे थे हमें फिर क्या लगने लगा? दैट ये अच्छा ऐसी स्थिति है तो ये मुझे भी चाहिए, हम भी ऐसा हो सकते हैं कि नहीं? और कैसी स्थिति? अर्जुन को कृष्णा बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम भी अगर अपने आप से, अपने मन से सारा कामना और वासना को हटा सकते हो, फिर तुम भी क्या हो जाओगे? एकदम तृप्त हो जाओगे, तुम्हारे मन में और कोई चाह नहीं होगा। इतने बचपन में भी हमको ये तो पता होने लगा कि ये जो कोई कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारे में तृप्ति क्यों नहीं होती है? Why we are not contented? Because we are constantly having desires. One desire is fulfilled and we are happy for some time, then another desire crops up. Anything, it may be concerning an object, it may be concerning a person, it may be concerning a behavior, it may be concerning any episode or event, anything. Constantly we are desiring and desiring and desiring. And we feel that our ananda, our joy, our happiness, our contentment is from these objects. Objects, persons, places, events, actions, behavior. We are constantly thinking through all this only we will be happy. And we have some plan, we have an idea that if my life goes on like this, then I'll be happy. But what is this saying? This is saying that you can be happy within yourself. You can be happy within yourself. हम क्या देखते हैं हमेशा कि बाहर की वस्तुओं से हमें सुख मिलती है, हम उसी के खोज में रहते हैं। वस्तु हो, कोई आदमी हो, कोई जगह हो, कोई सिचुएशन हो, कोई एक्शंस हो, उसी से हमें आनंद मिलती है। हम सोचते हैं कि इस तरह हम करेंगे तो हमारी जीवन बहुत सुखी हो जाएगी। पर ये क्या कह रहे हैं? इस एक श्लोक को लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आप अपने आप में ही तुष्ट रह सकते हैं। ये जब हमने पढ़ा इतने बचपन में भी मुझे लगा कि ये बहुत अजीब बात है। और जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कहाँ समझा रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में समझा रहे हैं। ये नहीं कि बैठ के समझा रहे हैं, बहुत समय हाथ में है, ऐसा नहीं। वहाँ पे स्थिति कैसी थी? वहाँ पे युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध होने वाला है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण
तो मेरा रथ को ले जा कर के यहाँ पे खड़े कर दो, जहाँ से हम दोनों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे तरफ कौन कौन से सेनाएं हैं, कौन कौन महारथी हैं देखें, और वहाँ पे कौन कौन है हम देखें। जब कृष्ण को ऐसा करके कहा, तब अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, रथ को जाके बीच में खड़ा कर दिया और हंसते हुए खड़ा कर दिया। कृष्ण को मालूम है अब क्या होने वाला है, और क्या हुआ, अर्जुन को एकदम से उसका पूरा मन खराब हो गया, शोकग्रस्त हो गया। ही बिकम एग्रीव्ड बिकॉज उसने देखा कि अरे किसके साथ हम युद्ध करने वाले हैं, सब हमारे जान पहचान के हैं, सब हमारे परिजन हैं, स्वजन हैं, हमारे जो सबसे प्यारे हमारे पितामह हैं, और जो हमारे सबसे मान्य हैं, हमारे टीचर द्रोण जी हैं, उनको हम कैसे मारेंगे, कैसे ये युद्ध हम करेंगे। तो उसके दिमाग में पूरा एक ऐसा अनुभव हो गया कि उसको वो सोच ही नहीं पाया कि अब क्या करना चाहिए। वो बैठ गया, हाथ से उसके धनुष और तीर गिर गए। दिस वॉज द सिचुएशन, द bow and arrow fell, he started trembling, he shivered, he fell down, he sat down and he was saying, I will not fight. ये तो स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन को कृष्ण ने बताया, जो कुछ भी बताया, हम भगवद गीता पढ़ रहे थे, अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम जब भगवद गीता पढ़ने लगे, किस तरह पढ़े, कैसा करके हमने अपने जीवन में उसको उतारा, कैसा करके उसको अपना एक साथी बना लिया, कैसा करके हमें समझ में आ गया कि हमारा जो जीवन है सभी का हो सकता है, सभी का क्षेत्र दूसरा दूसरा हो, सबके जीवन में एक ही घटना नहीं घटती है, पर ये तो घटना घटती है कि कभी कभी लहरें आती है, सुख की, दुख की, आनंद की, हर्ष की, और उस समय हम क्या करें हमको समझ में नहीं आता है। ये तो एक चीज़ कॉमन है सबके लिए। तो कैसा करके भगवद गीता को हम अपना सकते हैं और उसको लेके हम जीवन में चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं ताकि हम विचलित ना हो, हम डूब ना जाए। हाउ वी कैन टेक Bhagavad Gita? I am taking Bhagavad Gita, I am saying, but it can be any scripture. Bhagavad Gita is actually, it is written in such a manner, if we read it properly, we will find that it gives us so much of strength, so much of clarity, so much of courage, and so much of feeling of oneness with the Supreme. That is the best. Oneness with the Supreme power. तो हम जो आपको बताना चाहते हैं, जब हमें पूछा गया कि what should be the topic, I immediately said Bhagavad Gita in daily life, because that is the most easy for me to talk on. I think it will be easy for anybody if you make Bhagavad Gita your companion. Do you get me? Your companion. अपना सुहृद बनाना चाहिए, अपना फ्रेंड, साथी बनाना चाहिए। लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, और बहुत लोग पढ़ते हैं इस तरह कि एक वो रूटीन बनता है कि हम रोज़ एक चैप्टर भगवद गीता पढ़ते हैं, चैंट कर लेते हैं, और मन में बहुत संतुष्टि हो जाती है कि हम सुबह रोज़ एक ही टाइम में भगवद गीता एक चैप्टर हो, 2 चैप्टर हो, कई लोग तो पूरा के पूरा 18 चैप्टर पढ़ लेते हैं। They read 18 chapters together. But अगर आप भगवद गीता को साथी करते हैं, तो in whichever manner you study, whatever may be your discipline of study, it should be that you get the strength, devotion, courage, and this oneness with the Supreme from this. तब कैसे करेंगे उसको? अपना साथी बना के। और उसके लिए ये है कि ये देखें कि ये क्या बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को। अब देखिए, जैसे हमने बोला कि डेली लाइफ, व्हाट इज़ दिस डेली लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस लाइफ।
लाइफ क्या है? हमारे लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि वी टेक बर्थ, वी देन we grow, we get educated, then people will get married, people will have children, people will then settle their children. By that time they will become quite old, they will be diseased, and they will die. This is what is the pattern of life. One feels that this is the life. उसमें जो pattern है, उसमें भी people feel that very satisfied if they have been able to live comfortably, earning lot of money, or at least for minimum comfort, have settled the children and kept something for the children also and have died. Then people feel that I have lived the life very well. But is this the whole purpose of life? जीवन क्या इसी तरह बिताना है कि हम जन्म लेंगे, फिर कुछ बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर किसी की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, घर गृहस्थी करेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, कुछ पैसा सेव भी कर लेंगे बच्चों के लिए, और फिर मर जाएंगे? यही है क्या जीवन? यही क्या जीवन है? उस जीवन में, ठीक है वही जीवन है, उस जीवन में आप सोचिए कितना घात प्रतिघात आता है, कितने बार सुख दुख के सम्मुख हो जाते हैं, कितने बार दुख में डूब जाते हैं, कितना एंग्जाइटी रहता है। तो हमारे जीवन में हमेशा भय, एंग्जाइटी और क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब रहता है। इनडिसिशंस। हमारा पूरा जीवन जो है उसमें आनंद तो होता ही है, सुख तो होता ही है, पर अगर आप देखेंगे तब देखना कि उसमें यही ज़्यादा होता है। व्हाट? जीवन में along with happiness and joy, we are always surrounded by fear. Fear, anxiety, stress, strain. Then not to speak of the tendencies that we have. What kind of tendencies? Our evil tendencies, negative thoughts like dislike, criticism, finding fault, impatience, intolerance, all those things. Then indecisions, not being able to decide what is to be done in life. बहुत लोग इसी के कारण बहुत कष्ट पाते हैं कि क्या करना है, वो बुद्धि उनकी क्लियर नहीं होती है, तो हमेशा ही क्या करना है नहीं समझ में आता है, क्या करने से अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, ये भी समझ में नहीं आता है। तो जीवन ऐसी है, हमारी जो दैनंदिन जीवन है ना, वो इसी तरह चलता रहता है, पर हम लोग उसके लिए हम ये नहीं सोचते कि इससे मुक्ति कैसे मिले हमें। ऐसा भी जीवन हो सकता है क्या जिसमें हम हमेशा जो कुछ भी हो उसके अंदर हम अनअफेक्टेड रह सकते हैं, अविचलित रह सकते हैं, अविचलित रहे, हमें अफेक्टेशन नहीं होगा, कुछ भी होगा तो हमारा मन सम रहेगा, समान रहेगा। जैसे क्या क्या होता है, कभी हमें वो सक्सेस होता है, फेलियर होता है, गेन होता है, लॉस होता है, ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, हम कुछ चाहते हैं कुछ और मिल जाता है कि नहीं? तो उसमें भी हमारा जो मन है उसको हम बिल्कुल शांत रख सकते हैं कि नहीं, अनअफेक्टेड रख सकते हैं कि नहीं। ये जो एक हमारे मन में एक इच्छा, चाह, ये ज़रूर होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे थे, जीवन जो हमारा जीवन जिसको हम मामूली रूप में जीवन को कहते हैं, उससे भी ज़्यादा हायर एक पर्पस है। देयर इज़ अ हायर पर्पस इन लाइफ, and that higher purpose we must try to attain. First of all, to understand what is the higher purpose of life, then try to attain that. And there, Bhagavad Gita becomes a friend. पर उसको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी तरह। हम हमेशा कहते हैं कि आज भी हम किसी को बता रहे थे कि भगवद गीता सिर्फ चैंट मत करिए, भगवद गीता को समझ कर पढ़िए। कैसे समझेंगे? जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है उसी तरह एक एक श्लोक लीजिए और पढ़िए और देखिए वो आप समझे हैं कि नहीं। और उसको आप किसी को समझाने के लिए कह दिया जाए, सपोज़ आपने एक श्लोक पढ़ लिया और आपको बोला जाए कि ये थोड़ा मुझे समझा दीजिए,
फिर आपको समझाने तक उसको समझना चाहिए। किस तरह आप किसी और को भी समझा सकते हैं, उस रूप में पढ़ना चाहिए, एक स्टूडेंट बन के। और अगर आप वैसा करके पढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे कि उसमें बहुत दिलचस्पी होगी। यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। सो लाइक दिस, व्हेन I went and started reading Bhagavad Gita, I found that there are so many shlokas right in the beginning. You know, this 50, I just told the 55th shloka. Then in the 56th shloka क्या बोलते हैं? दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। क्या बोल रहे हैं? दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः। In dukkha, you are not affected. You are not smitten by dukkha. अगर दुख भी हो जाए, भारी दुख हो जाए, you are not affected. उसमें आप अविचलित रह सकते हैं। दुख तो होगा, पर आप उसमें डूबेंगे नहीं। और सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में मुझे सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए, ये अगर कोई सोचता रहेगा, अभी स्वामी जी ने समझाया कि सुख का और दुख का एक साइकिल होता है। सुख आएगा, वो सुख चला जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर वो चला जाएगा। जब दुख आया है तब मन में एक आशा होनी चाहिए कि ये भी मिट जाएगा, दिस फेज विल बी ओवर एंड अगेन सुख विल कम। सो सुखेषु विगत स्पृहः, एक मुझे यही चाहिए, a particular desire, undue desire that I must be having constantly sukha, constantly ananda, not like that. So a person who is not smitten by any dukkha and who does not foster undue desire only for sukha, he who rises above the attraction, vita raga bhaya krodha. देखिए ना, हमारा डेली लाइफ क्या है? डेली लाइफ क्या है? हमारे में राग है। राग क्या है? आकर्षण, प्यार करना, किसी को बहुत पसंद करना, ये है राग, अटैचमेंट, अट्रैक्शन। भय डेली लाइफ है ना। हमारे में जैसे सब किसी के लिए बहुत प्यार होता है, उसी तरह भय भी बहुत होता है। और क्रोध भी, हम हमेशा क्रोध के शिकार होते हैं, छोटी छोटी बातों पे होते हैं, क्रोध हो जाता है। तो राग भय क्रोध, ये जो तीन हैं, these three are constantly with us. So Bhagavad Gita is saying, who is saying? Krishna is saying. To whom? To Arjuna. क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा को अब क्या हुआ है? He is afraid. He is afraid. He is aggrieved. उसको क्या हुआ है? Krishna is aggrieved. Krishna is fearful that I have to fight this war, where what will the consequence he doesn't know. He may have to kill so many people. और हुआ भी वैसे ही, सिर्फ 10 जन बच गए थे, सिर्फ 10 जन. There were 18 अक्षौहिणी of सेना. Wait, अक्षौहिणी तो बहुत ही होगा, मुझे मालूम नहीं, बहुत सेनाएं होंगे, पर उसमें से कितने बचे? 10 व्यक्ति बचे, बाकी सब मर गए. तो उसको लग रहा था कि कैसा एक युद्ध है हम करने जा रहे हैं. हालांकि 13 साल से वो इसके लिए तैयारी की है कि मुझे लड़ना है और अपना जो राज्य है वापस लेना है. उसके लिए अर्जुन ने तपस्या की, बहुत अच्छे उसको वेपन्स भी मिली, अस्त्र मिले. फिर भी जब वो वहाँ पे गए, फिर उनको डर लगने लगा, भय लगने लगा, दुख होने लगा. तो ये हमारी जिंदगी ऐसी है. हम कभी बहुत साहसी होते हैं, पर कुछ एक छोटे चीज़ पे हमको डर लगने लगता है. अब कौन उस दिन बता रहे थे, रो के बता रहे थे, स्वामी जी को मिलने आए थे, वैसे तो बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, फिर बोल रहे थे सब कुछ ठीक है, रो के बोल रहे थे एक औरत कि स्वामी जी कभी कभी ना बहुत डर लगने लगता है. हम जब फ्यूचर का सोचते हैं बहुत डर लगता है. और आंसू टपक रहे थे.
ऐसी स्थिति तो लोगों को सबको होता है। तो जब हम ऐसी एक किताब को हाथ में लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तब हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि इसमें जो कहा जा रहा है, वीत राग भय क्रोधा, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में कोई एक जना पहुंच सकता है और जिसको बोलते हैं वो स्थितधीः है। स्थितधीः मुनिरुच्यते। स्थितधीः क्या है? उसकी बुद्धि स्टेबल है, स्थिर है, पॉइज्ड है। ऐसी एक बुद्धि में आप पहुंच सकते हो जिस समय, जिस स्थिति में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जब आपको दुख होने से भी आप उसमें डूबेंगे नहीं, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। दुख तो हो रहा है पर उसमें क्या करना चाहिए आपको वो भी समझ में आएगा कि दुख में हम चिल्लाते रहें, रोते रहें, कि उस स्थिति में मुझे कैसा करके क्या करना पड़ेगा ताकि इस दुख को हम सहन कर सके। वो आप ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और सुखेषु विगत स्पृहा, और हमेशा ही हमें सुख ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा, सुख के लिए ये करो, सुख के लिए वो करो, ऐसा नहीं होगा। और वीत राग भय क्रोध, राग, भय और क्रोध, इससे आप पार करोगे इसको, तीनों को। इन सब को पार करने से क्या होगा? मन प्रशांत हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा। राग, भय और क्रोध से ही हमारा मन जो है वो अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण जब ये बोले, और हम जब भगवद गीता को पढ़ते हैं, हमारे मन में भी ये प्रश्न होना चाहिए कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये कहा, और अर्जुन जो बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत दुखित हो गए थे, वो उन्होंने भी उठ के फिर आगे उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो जयी भी हो गए। तो हमको हमारा जो ये जीवन है, जिस जीवन में हमें तो अस्त्र शस्त्र लेके हम युद्ध नहीं करते हैं, पर बहुत समय हमारा जीवन भी युद्ध समान ही हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है जिसको हम नहीं जानते कैसे हल करेंगे उसका। एक तो बाहर की स्थिति होती है, कभी कभी मन की स्थिति से हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कि मन जब हमारा ठीक नहीं रहता, मन में हम जब we remain affected by each and everything, whatever happens in our life. तो श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये समझाए, आप जानते हैं हम आगे तो पढ़ते गए और आप भी पढ़ते होंगे। इस पढ़ने में सबसे पहले अर्जुन को श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन की जो बुद्धि है, बुद्धि को उन्होंने स्थितधीः बना दिया। ऐसी बुद्धि जिसमें रह कर के अर्जुन को पता चला किस तरह whatever situation one is in, one will be remaining stable and poised. समत्व में रह सकते हैं। हम लोग क्यों एजिटेटेड हो जाते हैं? Why are we agitated? Why are we disturbed? Because we are not able to remain in this sthitadhi state. When we are not able to accept the situations of life, when sukha comes, we are elated. When dukkha comes, we are absolutely depressed. We are like that. So, what Krishna has told Arjuna, in what way we can remain absolutely unaffected in life. जैसे हमने उस दिन भी बताया था 6th चैप्टर में, अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्णा, अर्जुन देखो ऐसी स्थिति है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, ऐसी स्थिति जिसमें रह कर के हमें लगता है कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। ऐसा है क्या हमारा जीवन? अब सब अपने आप को देखिए,
हर एक को लगता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, चाहे कितना भी एज हो जाता है, हो सकता है कि कुछ और, सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी मन में एक संतृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, लगता है कि कुछ और हो, या तो कोई आनंद वाला कोई ऐसा एक सिचुएशन हो कि कुछ उत्सव हो जाए, उत्सव मनाएं, कि कुछ लोग घर में आ जाए जिनके साथ बातचीत करके अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। हमेशा ही एक चाहना, मन परितृप्त नहीं है, संतृप्त नहीं है। और इसमें कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन देखो ऐसी स्थिति है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, और कोई दूसरा और भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको पा करके हमें लगेगा कि हमें इससे अधिक कुछ मिल गया है। ये स्थिति ऐसी है जिसको पा करके लगेगा इससे अधिक और कुछ नहीं है, और मन में सारा जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाएगा। और यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिस स्थिति में रह करके अगर ऐसी स्थिति हो जाए, when we are in that kind of situation and state, what will happen? Even if there is a biggest adversity, भारी से भारी दुख हमारे सामने हो जाता है, गुरुणा अपि विचाल्यते, हम लोग अफेक्टेड नहीं होंगे। वो स्थिति सबको चाहिए कि नहीं बताइए? हम लोग तो दुख कोई नहीं चाहता। मानिए दुख अगर आ भी गया है, ऐसी कोई स्थिति आ भी गया है, अभी देखिए ना जो भूकंप हुआ था यूक्रेन और सीरिया में, नहीं सॉरी टर्की एंड सीरिया में और यूक्रेन में युद्ध हुआ, वो जो छवियाँ देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे ऊपर ये आ जाए, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। बच्चे माँ से बिछड़ गए, पति पत्नी बिछड़ गए, पूरा फैमिली बिखर गया। वो कैसी स्थिति है? ऐसा ना हो, पर अगर हो जाता है हम कैसे उसको सामना करेंगे? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसी एक स्थिति है, तुम इसमें रह सकते हो, तुम उसके लिए कोशिश करो, और कोशिश करके अगर उस स्थिति में कोई भी आदमी रहता है, उसके लिए कुछ और नहीं चाहिए, वो सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत तृप्त है, और उसके लिए कोई भी अगर दुख आ जाता है उसको कुछ नहीं होगा, वो फ्लोट करता रहेगा। जैसे जो तैरने जानता है ना, वो पानी में तैरता ही रहेगा, फ्लोट करेगा, उसको वो सीख जाएगा कि कैसा करके भारी से भारी दुख में भी we can remain afloat in the midst of all kinds of waves of this life. लाइफ में वेव्स आते ही रहते हैं। ये जो है, अब ये बताइए, see, I always say that I always can speak what I have experienced, what I have gone through, what sadhana I have done. I can speak only that. And in doing so, as I am talking, so many things are coming in my mind. I said that one will remain afloat. यहाँ पे भगवद गीता में कृष्ण इज द गुरु एंड अर्जुन इज द शिष्य। अर्जुन सेकेंड चैप्टर में 7 श्लोक में अर्जुन, जो कि कृष्ण को अपना साथी जानते थे, अपना फ्रेंड समझते थे, जब उसकी स्थिति ऐसी हो गई, उसको बहुत दुख हो गया, वो शोक संतप्त हो गया, गिर गया, भयभीत हो गया, तब वो बोलता है, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत संकीर्ण है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये युद्ध लड़के क्या अच्छा भलाई हो सकता है, उसीलिए मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो बुद्धि है वो बहुत संकीर्ण है, संकुचित है। आप जैसे गुरु एक शिष्य को बोलते हैं, उसी तरह मुझे आप उपदेश दीजिए और मुझे आप इससे मुक्त कीजिए। ये अर्जुन ने कहा। और मुझे क्यों यही याद आया, ये वर्ड जब हमने यूज़ किया ना, अफ्लोट, कि हम भारी से भारी दुख में भी हम तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अफ्लोट, दिस इंग्लिश वर्ड,
हमें ये याद आ गया। यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं, ऑल आवर स्क्रिप्चर्स दे आर द रिप्लाई टू क्वेश्चंस ऑफ द शिष्यास। एक शिष्य ने गुरु को पूछा है और गुरु उसको रिप्लाई देते हैं। अब देखिए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, और योग वासिष्ठ रामायण में कौन किसको बताते हैं? वशिष्ठ देव श्री राम को बताते हैं। भागवत में कौन किसको बताते हैं? सुखदेव परीक्षित को बोलते हैं। अष्टावक्र संहिता में देखिए अष्टावक्र मुनि वो राजा जनक को बताते हैं। इसी तरह और आप अगर उपनिषद भी पढ़ेंगे देखेंगे कि एक गुरु एक शिष्य को बोल रहे हैं, किसी ने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर दिया गया। और ये जो उत्तर दिया जाता है, आप मानिए कब प्रश्न पूछा गया था, क्या कब उत्तर दिया गया था, ये सब कुछ आगे की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए कितना अच्छा है। उसी तरह एक भगवद गीता अर्जुन को बताया थे श्री कृष्ण ने, और हमारे लिए, हमारे बाद में भी जो पढ़ते रहेंगे सबके लिए ये कितना एक लाभदायक है। पर इसको हम उस तरह सुनेंगे कैसे अर्जुन ने सुना था। हो सकता है 2 घंटों में कृष्ण ने बता दिया और उनको साहस मिल गई। भागवत में भी परीक्षित ने 7 दिन में सुना था और वो ऐसे हो गए थे, ऐसा करके उन्होंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया था कि जब तक्षक ने आके उनको डस दिया, वो समझे ही नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो आत्मा के साथ विलीन हो गए। तो सुनना भी ऐसे चाहिए। वी शुड बी हियरिंग, वी शुड बी रीडिंग, वी शुड बी लिसनिंग, वी शुड बी कंटेम्पलेटिंग। मनन करके अगर हम इसको अपनाएंगे, जो कुछ भी बोला जा रहा है, तब वो स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब करना चाहेंगे क्या? ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए, सबके लिए, इट इज़ गिविंग अस द डायरेक्शन टू लिव अ लाइफ विदाउट फियर। वीत राग भय क्रोध। जीवन में जो राग है, भय है, क्रोध है, उसको पार करके, शोक है, मोह है, उसको पार करके किस तरह हम जीवन में अफ्लोट रह सकते हैं, डूबेंगे नहीं। सब कुछ आता रहेगा, हर साइड से आता रहेगा। अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, फियर होगा, डिल्यूशन होगा, इग्नोरेंस होगा, एंड क्रोध तो होता ही है सबको। ये सब कुछ में भी हम अफ्लोट रहेंगे, हम डूबेंगे नहीं। तो हम बता रहे थे कि अफ्लोट, ये जो वर्ड हमने बोला, उससे हमें याद आया जब हम स्वामी जी के पास अपना जो प्रार्थना रखे थे कि वी वांट टू जॉइन द आश्रम, तब स्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। बहुत दिन तक स्वामी जी के साथ बातें होती थी। स्वामी जी को हम लोग बताते कि हम लोग आश्रम आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तब स्वामी जी शुरू में बोलते थे, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, यू शुड टेक एनी डिसीजन टिल यू फील इट इज़, यू वॉन्ट नथिंग एल्स, टिल यू फील सो। तो ऐसी भी स्थिति आई जब हमको लगा कि बाहर के जीवन में हमको और अच्छा नहीं लग रहा था, हम पूरी तरह मन को यहीं पे देना चाह रहे थे। तब स्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत 3-4 लाइन का सेंटेंस, और उसमें ये लिखा था, ये सेंटेंस, आई विल टीच यू हाउ टू रिमेन अफ्लोट इन दिस लाइफ। समझ में आया? एक गुरु वही बोलते हैं, आई विल टीच यू हाउ टू रिमेन अफ्लोट इन दिस लाइफ। हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि इस जीवन में, जीवन के समुद्र में कैसा करके तुम, अफ्लोट का हिंदी क्या है? तैरना, तैर के रह सकते हो, तैर के रह सकते हो। उन्होंने कहा, कम चेयरफुली, नाउ द बर्डन इज़ माइन। वो 4-5 सेंटेंस की एक चिट्ठी है, वो रट गया है।
इतना बार पढ़े हैं कि वो रट गया है। कम चीयरफुली, नाउ द बर्डन इज माइन, वी विल शेयर द joys and sorrows of life together. I will teach you how to remain afloat in this life. हिंदी में क्या है? Come cheerfully. आनंदित रूप से आओ, आनंद करके, हर्ष के साथ आओ। Now the burden is mine. अब तुम्हारा जो भार है वो मेरा है, तुम्हारा सारा भार हम लेते हैं। अब से हम और तुम जीवन का जो कुछ भी सुख है, दुख है, उसको एक साथ हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। वी विल शेयर द जॉयज़ एंड सॉरोज ऑफ लाइफ टुगेदर, एक साथ उसको निभाएंगे। आई विल टीच यू हाउ टू रिमेन अफ्लोट इन दिस लाइफ। हम तुम्हें सिखाएंगे कैसा करके जीवन में तैर के ही तुम रह सकते हो, डूब ना जाओ। तो हमारे हर एक शास्त्र में सभी गुरुएं, सभी शिष्यों को जो कोई भी ये पढ़ता है उसको यही सिखाते हैं कि जीवन का जो युद्ध है, जीवन का जो ये सागर है, उसमें हाउ यू कैन रिमेन अफ्लोट, क्या सोच करके, क्या एटीट्यूड होना चाहिए जीवन के प्रति, क्या सोच करके, क्या बोलने से, क्या व्यवहार करने से, कौन सी एक्टिविटी करने से, एक्टिविटी भी किस भाव से करने से, ये पूरे जीवन के बारे में सोच के कैसा करके कोई भी आदमी आनंद से इसमें रह सकते हैं। और किस तरह का आनंद? बाहर के आनंद नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने अंदर जो आनंद है उसको चखना चाहिए। One has to taste the ananda inside oneself. Ananda inside oneself. We are Satchit Ananda. Our real identity is we are Sat, Chit and Ananda. We are the Atma. To be constantly tasting that, to constantly remember that and tasting that also. How will you taste it? You have to go inside yourself. You have to look into yourself. And remembering that this Ananda, which is absolutely imperishable, changeless, indestructible, वो हमारे अंदर है, उसमें बार बार वहीं पे जाना, बार बार अंदर में जो अपना अंतरात्मा है उसमें जो आनंद है उसको खोजना, बाहरी आनंद को नहीं। बाहरी आनंद में क्या है? हर एक चीज़ है, जैसे हम बता रहे थे, एक वस्तु है, घटना है, एक व्यक्ति है, एक सिचुएशन है, इनमें हम आनंद खोजते हैं। कि जैसे वस्तु, किसी को गाड़ी चाहिए, हाँ गाड़ी, एक गाड़ी खरीद लिया, बहुत आनंद हो गया, कुछ देर में वो गाड़ी कुछ प्रॉब्लम देने लगती है तो फिर अपने आप को बॉदरेशन होती है, फिर सोचने लगते कि ये क्या कर लिया। फिर किसी और की गाड़ी अच्छी, और भी अच्छी गाड़ी दिखती है तो लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे दिमाग में यही सब बातें आती हैं। और ये तो वस्तु ही, फिर कोई मनुष्य से भी हो सकता है कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जब बिछड़ जाते हैं तब दुख होता है। और नहीं तो ये भी हो सकता है किसी को हम बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं पर उन्हीं के साथ हमको रहना पड़ता है। फिर घटना, हम जो हैं, हम बाहरी चीज़ों से हम आनंद उठाना चाहते हैं, पर वो जो बाहरी चीज़ें हैं वो क्या है? वो बाहरी चीज़ें, दे आर ऑल पेरिशेबल, दे आर नॉट इटर्नल, दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो उन चीज़ों से हम सोचते हैं कि जो आनंद मिलेगा हमें आनंद मिल गया, पर हम ये नहीं समझते, बुद्धू रहते हैं कि वो आनंद ख़त्म होने वाला आनंद है। तो कैसा आनंद हमारे जीवन में हमेशा रहेगा उसका भी तो खोज करना चाहिए। तो उसी का बोले हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और उसी का बोलते हैं सारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, अपने अंदर में जो है
वो एक आनंद का एक स्प्रिंग जैसा है, फुहारा नहीं होता है, आनंद का फुहारा। स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। शंकराचार्य बोलते हैं कि बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, अपने अंदर डूबो। अपने अंदर में क्या है? एक फुहारा है। किस चीज़ का फुहारा? आनंद का फुहारा। वो अपना फुहारा, वो फुहारा भी जैसे बाहर में भी हम एक फुहारा बनाते हैं ना, स्प्रिंग बनाते हैं। अब जैसे जुबली पार्क में कितना फुहारा बनाए होंगे और कितना भी लाइटिंग दिया होगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो भी हम लोगों का बनाया हुआ है। वो भी कुछ दिन के बाद कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर उठा भी दिया जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा। वैसी नहीं, ये फुहारा कैसी है? हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, अंदर की फुहारा है। और इस फुहारे से जो आनंद निकलता है वो बिल्कुल अपनी है। स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं, उसमें स्वस्मिन् मीन्स अपने आप में, अपने आप में डूबो। और क्रीडति नंदति स्वयं, अपने आप में स्वयं खेलो, खेल कूद करो और नंदति आनंदित रहो। उस फुहारे में डूब करके अपने आप में तुम खेलो और आनंदित रहो। क्या होगा? निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। निरंतर का अर्थ क्या है? व्हाट इज निरंतर? निरंतर मीन्स अनब्रोकन, इंसिसेंट, जिसकी कोई छेद नहीं होता है, जो हमेशा के लिए होता है। वो निरंतर आनंद रसेना, वो निरंतर आनंद रस तब मिल जाएगा। बाकी जो आनंद रस है वो कैसा होता है? कभी है कभी नहीं है, आज है तो थोड़ी देर में नहीं है, कल नहीं है, कि अभी अभी कुछ देर के लिए है, बाकी समय नहीं है। वैसे ही आनंद है ना हमारा। और जैसे एक आनंद खत्म हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि वो फिर से कब आनंद होगा। उसीलिए ना इतने सारे उत्सव होते हैं हमारे। एक उत्सव खत्म हो जाता है, जब तक हम उत्सव के लिए उत्सव सोचते हैं, ये वाले जैसे मानिए अभी इधर बहुत उत्सव है, स्वामी जी आएंगे आएंगे आएंगे। पहले तो था कि स्वामी जी आ भी पाएंगे कि नहीं, स्वामी जी का हेल्थ खराब है, आएंगे भी कि नहीं, ऐसा एक मन में था। फिर सुना कि हाँ स्वामी जी आएंगे, अच्छा आएंगे आएंगे करके आनंदित सब लोग। अब हो चल रहा है उत्सव, कुछ दिन में, अभी 2 दिन में लगेगा स्वामी जी जाएंगे जाएंगे, तो दुख अंदर आ गया। और जिस दिन चले जाएंगे उसके बाद दुख ही दुख। तो वो उत्सव तो इंसिसेंट नहीं है, उसका है आद्यंतवंतः, उसके आदि भी है अंत भी है। और ये वाला आनंद कैसा है? हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। तो हम लोग कितने बुद्धू हैं कि हम उसको खोज नहीं करते हैं, उसका खोज नहीं करते हैं। हम जो दुख जो सुख खत्म होने वाला है उसी के पीछे हम लोग भागते भी हैं, जानते हुए भी कि अंदर एक ऐसी आनंद है जो हमेशा के लिए है। उसको जानते हुए भी हम बुद्धू के तरह बाकी के पीछे भागते हैं, बुद्धू ही रह जाते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले समझाया कि हमारे अंदर क्या है। समझ में आया? अर्जुन की स्थिति क्या थी? वो गिर गए थे, भयभीत हो गए थे, शोकग्रस्त हो गए थे, और उनको ये लग रहा था कि हम क्या करें, ज़रूर युद्ध नहीं करेंगे। वो ये भी बोलने लगे कि हम सन्यासी होके चले जाएंगे। ये सब करने से क्या होगा? मन जो है, जो मन हमारा है, किसका शिकार है? राग, भय, क्रोध, शोक, मोह, इन चीज़ों का शिकार है। वैसा मन को लेके हम जहाँ कहीं जाएंगे वैसे ही होगा। हम हो सकता है एक सिचुएशन में हम रहते हैं, मानिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आपके बॉसेस ठीक नहीं हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स ठीक नहीं, आपके कलीग्स भी आपको अच्छे नहीं लगते, तो आपने सोचा कि नौकरी इसको छोड़ करके दूसरा नौकरी करेंगे। वहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि आपका मन वैसा है। तो मन को साथ में लेके हम चलते हैं। उस मन को स्थितधीर बनाना है। क्या? चाहे कुछ भी हो, मन विचलित नहीं होगा। तो अर्जुन ने ये सिखाया, और सिखाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपना जो आइडेंटिटी है, स्वरूप है, उसको समझाया कि हे अर्जुन देखो, तुम्हारा जो स्वरूप है ना,
वो है अविचलित, वो है नित्य, वो है एकदम जिसको कोई ना काट सकता है, ना मार सकता है, ना भिगो सकता है, ना सुखा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो किसी चीज़ से हिलने वाला नहीं है। अब पहले तुम समझो कि तुम वो हो, वो समझ करके तुम काम करो। काम करते समय वो जो एक तुम्हारा ज्ञान हुआ कि तुम कौन हो, तुम अविचलित हो, तुम नित्य हो, ये जो ज्ञान है उसको लेके तुम जीवन में जो कुछ काम करते हो, उस काम करते समय तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए वो हम तुमको सिखाएंगे। यही है ना हमारा जीवन क्या है, एक्टिव। हम लोग हमेशा ही एक्टिव हैं। वी आर ऑलवेज एक्टिव, वी आर ऑलवेज इन एक्टिविटी। वी आर नॉट, सी ऑल ऑफ अस, वी आर नॉट इन द फॉरेस्ट कि ध्यान करके समाधि लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुबह से उठ के रात तक हम लोग एक्टिविटी में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। सो उस एक्टिविटी में हाउ टू रिमेन कनेक्टेड विथ वंस ओन सेल्फ, जो कि नित्य है, जो कि अविचलित है, जो कि अनअफेक्टेड है, उसके साथ कनेक्टेड भी रहें और काम भी करें। और किस भाव से काम करें ताकि हमारा मन ये जो युक्तता है उससे उसको खो ना दे, ये सिखाया। समझ में आया? तो हम कहते हैं कि भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं ना, ये सब सोच सोच के पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक मैकेनिकल वे से नहीं पढ़ना चाहिए कि एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया और 18 दिन में 18 चैप्टर ख़त्म कर दिया। ये नहीं, पढ़ते हुए आपको भी इस लक्ष्य को रखना चाहिए कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें से कुछ तो हम अंदर ले लें, कुछ तो हम अंदर ले लें। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर ओल्ड पीपल, इट इज़ फॉर एवरीबडी। सम यंग चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर, दे आर सिटिंग एट द बैक, पीछे बैठे हुए हैं। सबके लिए लागू है। सब कोई को ये चाहिए कि हम इसमें से क्या पढ़ सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या जान सकते हैं और कैसे अपने जीवन को हम चेंज कर सकते हैं। व्हाट एटीट्यूड शुड बी देयर। तो शुरू में क्या बोला है उन्होंने, ये बताया, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कृष्ण भगवान सबसे पहले अर्जुन को सोल के बारे में बताते हैं, जो हमारा स्वरूप है। वो बोलते हैं द सोल इज़ नॉट बॉर्न, न जायते, जन्म नहीं है, जन्म रहित है, न म्रियते वा कदाचित, एंड इट डज नॉट डाई। तो सोल जो है जन्म रहित और मृत्यु रहित है। हमारा जो आत्मा है, ना तो इसका जन्म है ना उसका मरण है। और ये भी बोल रहे हैं कि जब वो हमेशा के लिए ही प्रेजेंट है, क्योंकि उसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, ना ही वो आता है ना जाता है, हमेशा एक ही जैसा है। वो सेल्फ, हमारा स्वरूप हमेशा के लिए है, उसीलिए वो नित्य है। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये जो है अनबॉर्न है, जिसका जन्म नहीं है, नित्यः एवर प्रेजेंट, नित्य आप जानते हैं हिंदी वर्ड है, और शाश्वतः ये परमानेंट है, पुराणः मोस्ट एंशिएंट, बहुत पुराना, कब से है कुछ पता नहीं है, आदि अंतहीन ये है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और जब शरीर का नाश हो जाता है, सोल का नाश नहीं होता है, शरीर का ही नाश होता है।
शरीर जो है वो चेंजफुल है, उसमें चेंज होता है, पर आत्मा में चेंज नहीं होता है। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हम सोच नहीं पाते कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि वो काम पहले करना चाहिए। बुद्धि में भी चलन होती रहती है। ये जब हम जगे हुए रहते हैं, जागृत में रहते हैं, तब होता रहता है। उसी के कारण हमारा जो है अस्तित्व जो है, व्यक्तित्व जो है, वो हमेशा एजिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है। और जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, ना शरीर रहता है, ना मन रहती है, ना बुद्धि, वो सब चला गया, उसका एजिटेशन भी चला गया। वी आर इन द एम्ब्रेस ऑफ द सोल एंड दैट इज़ वाई वी फील सो रिफ्रेश्ड। तब सोने से उठने के बाद हमको लगता है कि बहुत आराम हो रहा है, बहुत आराम हो रहा है, क्योंकि हम उसके एम्ब्रेस में चले गए थे। वो तो हम सो के किए थे, ये हम जग के भी कर सकते हैं अगर हम नित्य युक्त रह सके। समझ में आए? हाँ, ये बहुत अच्छा है कि नहीं? जब भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत श्लोक हम लेंगे आपके साथ, जो एक जब वहाँ पे जब आता है नित्य युक्त, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि नित्य युक्त कैसे रह सकते हैं, वो हो सकता है क्या? नहीं, वो संभव है क्या? संभव तो होगा ज़रूर, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, तो नित्य युक्तता हो सकता है। हमें थोड़ा कोशिश करना पड़े कि किस तरह से हम नित्य युक्त रह सकते हैं। हम आगे जो 2 दिन बोलेंगे, हम लोग आपके साथ ही चर्चा करेंगे कि किस तरह, किस सोच से, क्या बोलने से, क्या करने से, किस एटीट्यूड से साथ काम करने से और किस तरह बिहेव करने से हम नित्य युक्त रह सकते हैं। आप ऐसा चाहेंगे क्या? ज़रूर चाहेंगे। ये हमको एक वर्ड नित्य युक्तता बहुत अच्छा लगता है। और एक भागवत का एक पंक्ति हमको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे प्रहलाद के बारे में बताया गया है, गोविंद परिरंभितः। वो तो डिवोशनल टेक्स्ट है ना, उसमें ये बताया गया है कि प्रहलाद जो है वो सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोचते हुए, कुछ भी करते हुए, उनको हमेशा लगता था कि वो भगवान से आलिंगित है, भगवान से आलिंगित है। गोविंद परिरंभितः। हम आपको ये कहना चाहते हैं, जब हमें पढ़े ना और ये शब्दों के साथ हमारा फेस टू फेस हम आ गए, पढ़े, तब हमें लगा कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें क्या करना होगा? और साधना इसी के लिए हुआ। एक तो है नित्य युक्तता और दूसरा है गोविंद परिरंभितः। कुछ भी आप करिए, आपको हमेशा लगे वो जो उपस्थिति है, एक जो भगवान का एक स्पर्श है, वो आपको हमेशा ही अनुभव होए। ये हम हमेशा कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि भगवत गीता में क्या क्या हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे हम कि सिर्फ कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, ये देखेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको कैसे हमारे जीवन में ला सकते हैं, ताकि हमारा जीवन भी हमेशा उस आनंद का फुहारे के साथ युक्त रहेगा और हम भी हमेशा ऐसा अनुभव करेंगे कि हम भगवान से हो कि अपने आत्मा से हो, आलिंगित हैं, आलिंगित हैं हमेशा। देखिए भागवत का एक श्लोक है, वो बहुत सुंदर है। अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनात् तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधाः ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्
अधोक्षजालम्भमिहा अशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनं तद्ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधाः ततो भजध्वं हृदयेर्हृदीश्वरम्। इसमें बोल रहे हैं अधोक्ष जालंभम यहाँ अशुभात्मनः, जो मनुष्य लोग हैं जिनके मन में बहुत तरह की विचारें होती हैं, बहुत तरह की चिंताएं होती हैं, कोई तो अच्छे होते हैं, कुछ शुभ होता, कुछ अशुभ होते हैं, हमेशा ही देयर विल बी ऑलवेज थॉट्स रोलिंग इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखिए सुबह से लेकर रात तक, और भगवद गीता में बताया है जब से जन्म लिया है तब से लेकर जब तक शरीर शांत नहीं हो जाता है तब तक मन में चिंता और चिंता और चिंता खत्म नहीं होता है। और बात यह है कि वो जो चिंता है वो हमको एजिटेट करते हैं। और यहाँ पे भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं चिंता होने दीजिए, चिंता को भगवान की तरफ मोड़िए, तब एजिटेशन नहीं होगा। किस तरह किया जाएगा? तो इस श्लोक में बोल रहे हैं अधोक्षजा है कौन? श्री हरि भगवान। वो उनका आलिंगन, वो जब आलिंगन करते हैं तब कैसा भी आदमी हो, कैसा भी चिंता की गतियाँ हो, शुभ हो अशुभ हो, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अधोक्षजालंभमिहा अशुभात्मनः। फिर क्या है? शरीर संसृति चक्रशातनम। जो मनुष्यों को जो चिंताएं होती है उससे उनका जो संसार धारा है, जो संसार में जो जैसे करके वो रहते हैं वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। खत्म होके क्या होता है? भगवान का आलिंगन जब मिलता है तब सारा कुछ खत्म हो जाता है। अशुभ जो चिंता है सब चला जाता है, मन शांत हो जाता है। और तब क्या मिलता है? तद ब्रह्म निर्वाण सुखम। मन जब शांत हो जाता है भगवान के आलिंगन से, मन को जब लगता है हम भगवान से आलिंगित है और उसी को चाहता है और कुछ नहीं, सब कुछ मिट जाता है। सब संसार में रहते हुए भी ऐसा एक फीलिंग होता है कि हमें कोई प्रोटेक्ट किए हुए हैं। I am being protected by and embraced by the divinity, the divine. और उससे उसको लगता है वो जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण सुखम। मुक्ति का जो स्वाद है, मुक्ति का जो सुख है, निर्वाण सुखम, ब्रह्म निर्वाण सुखम। ब्रह्म को अगर हम स्पर्श कर सकते हैं, अगर ब्रह्म से हम जो कुछ भी समझते हैं, जो एक ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है, ब्रह्म निर्वाण सुख है, वो मिल जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक में आगे बोला है तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधाः। जो ज्ञानी लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं, महापुरुष लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी तरह अपने आप में ये आलिंगन को अनुभव कर सकते हैं, मन शांत हो जाएगा, मन में निर्वाण सुख मिल जाएगा, ब्रह्म निर्वाण सुख मिल जाएगा। और उसीलिए वो कहते हैं कि इसको करने के लिए हे साधकगण, हे भक्तगण, ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। कहीं और भजना करने का, आराधना करने का, पूजा करने का कुछ नहीं है। अपने हृदय में जो हृदीश्वरम है, कौन है वो? अपनी आत्मा, उसको पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसमें युक्त हो जाओ। जो कुछ भी करना है अंदर डूब के अपने जो हृदीश्वर है उसी की भजना करो। ये तुम करो तब मन में हमेशा यही लगेगा कि ब्रह्म निर्वाण सुख क्या है और भगवान के आलिंगन से क्या सुख है। तब इधर उधर छोटा मोटा सुख अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, अपनी कुछ ये मिलने से, वो मिलने से, कुछ के लिए मन में चाह नहीं होगा। वो मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मिलते रहते हैं, जो मिलता है वो उसको भोग कीजिए, ये जान करके
कि निरंतर सुख ये है, निरंतर सुख यही है। हम बाकी जो भोग कर रहे हैं वो सब अनित्य है, वो चला जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहते हैं, फिर आगे देखेंगे। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाच प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।